بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، صبح جلدی اٹھنا ایک بہت ہی اچھی عادت ہے۔ صبح کے وقت کیے جانے والے کاموں میں اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ صبح سویرے اٹھنا ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا، چڑیوں کی چہچہاہٹ اور سورج کی پہلی کرن دل و دماغ کو راحت و سکون بخشتی ہے۔ اور صبح جلد اٹھنے سے دن کے دوسرے کام مکمل کرنے کے لیے بھی بہت سارا وقت مل جاتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے خبر نامے کو اور سب سے پہلے سنتے ہیں ہیڈ لائنز۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بک ریویو میں ہوگا ایک اچھی سی بک کا ریویو، ویڈیو ریویو میں دیکھیں گے سعد اور سعدیہ کا ایک ایپیسوڈ، مدنی مذاکرے کی اپڈیٹ عرس مبارک، لیں گے FGRF کی خدمت کا جائزہ دیکھیں گے شرارت بھرے پیکج کی شرارتیں اور سیکھیں گے ننھے استاد سے اچھی باتیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں بک ریویو کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ عزیز بھائی ہمیں کیا اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بک ریویو میں خوش آمدید۔ خبر نامے کے اس حصے میں ہم دعوت اسلامی کی کتابوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے مل سکتی ہے اور ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر کے مطلوبہ کتاب ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ آج میں جس کتاب کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے حاجیوں کے لیے سفر حج کا بہترین تحفہ، جس کے رائٹر امیر اہل سنت ہیں۔ کتاب کا نام ہے رفیق الحرمین۔ کتاب کے بارے میں کچھ خاص باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہوائی جہاز والے کب احرام باندھے، اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانا کیسا، تمام حاجیوں کے لیے مدنی پھول، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں، حج مبارک کا بورڈ لگانا کیسا، حج کی قسمیں، سب سے افضل دعا، میدان عرفات میں دعا کھڑے کھڑے مانگنا سنت ہے، جالیہ مبارک کے روبرو پڑھنے کا ورد، سلے ہوئے کپڑے وغیرہ کے متعلق سوال و جواب، حج و عمرہ کا طریقہ اور دعائیں وغیرہ۔ یہ کتاب خود بھی پڑھیں اور حاجیوں کو بطور تحفہ پیش کر کے خوب ثواب کمائیں۔ مختلف زبانوں میں یہ کتاب موجود ہے جس میں سندھی، ہندی، انگلش، گجراتی، رومن وغیرہ۔ اس کتاب میں حج کا مکمل طریقہ ہونے کے ساتھ ساتھ کن مقامات پر کون سی دعائیں پڑھنی ہیں وہ بھی موجود ہے۔ آپ اس کتاب کو آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے اس پیکج سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے اور جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ویڈیو ریویو کی جانب۔ جی تو فیضان بھائی آج آپ کس ویڈیو کا ریویو کرنے والے ہیں؟ جی آج میں کڈز مدی چینل کے ناظرین کے لیے سعد و سعدیہ کا ایک نیا ایپیسوڈ لایا ہوں اچھا جی، ماشاء اللہ۔ جس میں ہمیں ایک بہت اچھی سی بات سکھائی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث بھی یاد کرائی گئی ہے۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، چلو آؤ جلدی سے باہر آ جاؤ، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لائی ہوں۔ ارے واہ، مجھے تو ویسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ تم تو اتنا کھانے کے بعد بھی بھوکی ہی رہتی ہو۔ او تمہیں بھی بھوک لگی ہے؟ ارے بھوکی کہیں کی، مجھے بھی کھانے دو۔ میرا پیر اب آرام بیزا۔ پاگل مرغے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ رک جائیں آفیہ، آپ کیوں تنگ کر رہی ہیں اس بیچارے مرغے کو؟ دیکھیے کتنی بری طرح ہانپ رہا ہے یہ بیچارہ، یہ
देखे, उससे मेरे पैर पर कितनी बुरी तरह मारा है। मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगी। आफिया, मेरी बात सुने, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। भले ही आप में मुर्गे से बदला लेने की ताकत है, लेकिन आप सब्र कीजिए और अपने गुस्से पे काबू रखें। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताकतवर तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। माशाल्लाह आपी, आपने तो बहुत प्यारी हदीस पाक बताई है। अब मैं मुर्गे से बदला नहीं लूंगी। हाँ, शुक्र बच गया। हारने के लिए तैयार हैं हारिस भाई? हाँ, मैं और हार जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी पता चल जाएगा। 1 2 3 स्टार्ट। ये चीटर कहीं के। अरे हटो। अरे रुके शारिक भाई, ऐसा ना करें। देखा, मुझे धक्का देने का अंजाम। ये क्या किया? मुझ पर पानी फेंका। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहे हैं शारिक भाई? छोड़े साद भाई, इन्होंने पहले मुझे चीट किया, फिर मुझ पर पानी भी फेंका। मैं इनसे बदला जरूर लूंगा। मुझे बचाएं साद भाई। शारिक भाई रुकें, इतना गुस्सा ना करें। ठीक है, हारिस भाई से गलती हुई है, लेकिन गलती को माफ कर देना और गुस्से को काबू में रखना असल ताकत है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताकतवर तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। ठीक है साद भाई, मैंने हारिस भाई को माफ किया। माशाअल्लाह। हाँ, शुक्र बच गया। जज़ाकल्लाह साद भाई। हारिस भाई, चीटिंग करना अच्छी बात नहीं, आइंदा ख्याल रखिएगा। ठीक है साद भाई। साद भाई, हमें भी ये हदीस पाक याद करवा दे। जी बिल्कुल, मेरे साथ पढ़ें। ताकतवर तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब। बिल्कुल, हमें सबके साथ नरमी करनी चाहिए और ताकत का मुजाहिरा करने से गुरेज करना चाहिए। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक हमें अपना पसंदीदा बंदा बनाए, आमीन। इसी के साथ चलते हैं FGRF की जानिब, जहां हम करेंगे जिम्मेदारान से कुछ सवालात। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, पानी बैठकर पीजिए, 3 सांसों में पीजिए। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पीजिए। है करम इस पर खुदाए पाक का, है करम इस पर खुदाए पाक का, दावत इस्लामी से यूं प्यार है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फराज अत्तारी है। और आपकी जिम्मेदारी? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डिफेंस टाउन की जिम्मेदारी मेरे पास है। माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल करने की आपसे इजाज़त है? इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं, सवाल आप करें। FGRF को ये ख्याल कैसे आया कि इस गर्मी में लोगों के लिए सबील का एहतमाम किया जाए? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी तो ज़ाहिर है कि बड़ी पुरानी तहरीक है और FGRF का डिपार्टमेंट अगरचे कुछ अरसे पहले शुरू किया गया है, लेकिन ये जो सोच अमीर अहले सुन्नत ने दी है कि लोगों की खिदमत करनी है, इस परेशानी और डिज़ास्टर्स के मौके पर दुखियारी उम्मत का साथ देना है, तो ये सिलसिला तो अमीर अहले सुन्नत की सोच जो अता की थी वो तो पहले से ही, जब से दावत इस्लामी बनी है। आपने FGRF के तहत कराची में कितने कैंप लगाए हैं? FGRF के तहत अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 से 45 कैंप इस हीट वेव के लिए लगाए गए हैं। और हीट वेव से बचने की एहतियाती तदाबीर से लोगों को आगाह किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर हस्बे मौका एज पर कंडीशन लोगों को एहतियाती तदाबीर भी बताई जाती रही हैं। अच्छा, ये बताइए FGRF डिफेंस में भी वर्किंग कर रही है? कराची के इस इलाके डिफेंस के अंदर भी इसकी वर्किंग है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप कैंप देख रहे हैं ये DHA डिफेंस की मुशावरत के ज़िम्मेदारान के तहत ही अल्हम्दुलिल्लाह लगाया गया। FGRF इसके अलावा और कौन सी खिदमत इस गर्मी के मौसम में आशिकाने रसूल को फराहम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम है जो जारी व सारी है। इसके अलावा कुछ ऐसे काम हैं कि जो हमारी प्लानिंग के अंदर हैं जिसको इंशाल्लाह अनकरीब एग्जीक्यूट किया जाएगा। जिस तरह मानसून का मौसम जब शुरू होता है तो ये एक प्लांटेशन के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मौसम होता है, तो इसके लिए एक बाकायदा प्लानिंग जारी है और अनकरीब इंशाल्लाह बड़े दरख्त लगाने का पूरा सिलसिला जो है वो मुल्क भर के अंदर होगा और कराची के अंदर भी इंशाल्लाह इसका सिलसिला आप अनकरीब देखेंगे।
जज़ाक अल्लाहु खैरा। है करम इस पर खुदाए पाक का, है करम इस पर खुदाए पाक का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवाल करने की इजाज़त है? जी बिल्कुल, पूछें। अच्छा, अब ये बताएं FGRF की ये कोशिश आपको कैसी लगी? माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी है और इसको अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे। बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मियों में जो है ना ये निज़ाम बहुत अच्छा लगा, मुझे दिल को खुशी हुई। ये बहुत अच्छी है और अल्लाह ताला इनको और हिदायत दे और अच्छा करे। अच्छा, आप ये बताएं हीट वेव क्या होता है और इससे ख्याल कैसे किया जा सकता है? ये होता है इससे जो है कम से कम धूप में निकलना चाहिए और अगर मजबूरी है तो बाहर निकलते वक्त सर के ऊपर कुछ ना कुछ कपड़ा या टोपी रखे ताकि वो डायरेक्ट जो है उसमें ना असर करे सर में। गीला टोपी या तौलिया वगैरह ये चीज़ गीला करके रखनी चाहिए। हमें जो है ना कैप पहनना चाहिए और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जितना हो सके और हमें धूप से बचना चाहिए। रुमाल गीला करना चाहिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। आप दावत इस्लामी और FGRF के लिए कुछ कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे तो मदीना चैनल तो ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की दे। उन्होंने ये जो निज़ाम बनाया है बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत दिल को खुशी हुई कि जो है ना जो लोग इससे जो ताउन कर रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा काम करें, बहुत बेहतरीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? मोहम्मद फ़हीम अत्तारी। अच्छा, ये बताएं कि मुसलमानों को पानी पिलाना ये भी सवाब है? बिल्कुल, मुसलमानों को पानी पिलाना एक कार सवाब है। गर्मी की शिद्दत के सबब जो है वो FGRF दावत इस्लामी के तहत ये कैंप लगाया गया है और मुसलमानों को पानी की सहूलत फ़राम की गई है ताकि लोग गर्मी के अंदर जो है वो पानी पीकर गर्मी की शिद्दत से बच सकें। और आप यहाँ पर लोगों को पानी पिला के कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है कि लोगों को हम जो है वो यूँ फैसिलिटेट कर रहे हैं और दावत इस्लामी की तरफ से ये सहूलत फ़राम कर रहे हैं, मुहैया कर रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। तो अब वक्त हुआ है हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट का। देखते हैं कि आज की रिपोर्ट किस टॉपिक पर है। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। प्यारे बच्चों, मैं हूँ फहद और आज की स्पेशल रिपोर्ट में मैं आपको वेलकम करता हूँ। अल्लाह पाक ने किस्म किस्म के खूबसूरत और हैरान कर देने वाले दरख्त, चरिंद, परिंद, समंदर, दरिया बनाए हैं जो हमें अपने माहौल में या आसपास कहीं कहीं नजर आते हैं। आज के स्पेशल रिपोर्ट सेगमेंट में ना सिर्फ होस्ट बल्कि नाजरीन को भी नॉलेज का खजाना मिलेगा। इस प्यारे और खूबसूरत से एनिमल का नाम है रेनडियर। रेनडियर का ताल्लुक डियर यानी हिरन की फैमिली से है। ये एशिया और यूरोप के ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं और आर्कटिक रीजन में इनकी तादाद ज्यादा है। इनका रंग डार्क ब्राउन हो सकता है या करीब करीब व्हाइट यानी सफेद रंग के भी होते हैं। रेनडियर के मेल को बुल्स, फीमेल को काउस और बच्चे को काफ कहते हैं। प्यारे बच्चों, डियर यानी हिरन के सिर्फ मेल के सिंग होते हैं और फीमेल के नहीं होते, लेकिन डियर फैमिली में सिर्फ और सिर्फ रेनडियर है जिनके मेल और फीमेल दोनों के ही सिंग होते हैं। ये सिंग उन्हें मिट्टी और बर्फ को हटाकर खाना तलाश करने और शिकारियों से खुद को बचाने में मदद देते हैं। दोनों रेनडियर के सिंग हर साल नए आते हैं और पुराने वाले खुद ब खुद गिर जाते हैं। क्या कुदरत है अल्लाह पाक की। इनका कोट गर्मियों में डार्क होता है और जब विंटर आती है तो ये लाइट हो जाता है। बच्चों, मेल के ये सिंग तकरीबन 52 इंचेस तक पहुंच जाते हैं और फीमेल के ये सिंग 20 इंचेस तक बढ़ते हैं। बच्चों, देखा जाए तो रेनडियर के बाल नाक से लेकर उनके हूफ्स यानी खुरों तक होते हैं। देखने पर इनके खुरों पर ये नजर आने वाले बाल भी अल्लाह पाक की कुदरत का एक करिश्मा है जो उन्हें जमी हुई जगह बर्फ मिट्टी पर चलने में बहुत मदद देता है। डियर फैमिली में सिर्फ और सिर्फ रेनडियर ही ऐसा जानवर है जिसकी पूरी नाक बालों से भरी हुई होती है। इनकी खूबसूरत नाक पर बाल सांस लेने पर ठंडी हवा को फेफड़ों तक पहुंचने से पहले गर्म करने का काम करते हैं। रेनडियर हार्बीवोर्स हैं जो पौधे, हरे पत्ते, घास और जरूरत पड़ने पर फिंक्स और एलर्जी भी खाते हैं। रेनडियर के सुनने और देखने की सलाहियत या ताकत ज्यादा नहीं, ये ज्यादातर अपनी सेंस ऑफ स्मेल पर भरोसा करते हैं। ये सेंस ऑफ स्मेल खाना तलाश करने, खतरे का अंदाजा लगाने और डायरेक्शन या सिम्स समझने में मदद देती है। क्या आपको पता है समर सीजन में रेनडियर की आंखों का रंग गोल्डन
गोल्डन होता है। विंटर में ये आंखें गहरे नीले कलर की हो जाती हैं। इन्हें रोजाना 4 से 8 केजी चारे की जरूरत होती है, जिसके लिए रोजाना तकरीबन 15 से 65 किलोमीटर तक का सफर भी करते हैं। खड़े खड़े रेनडियर तकरीबन 6 से 8 फीट तक जंप कर सकता है और 70 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता है। ये रेनडियर ना सिर्फ चल और दौड़ सकते हैं, जंप लगा सकते हैं, बल्कि स्विमिंग भी कर सकते हैं। स्विमिंग रेनडियर बड़ी बड़ी झीलों और दरियाओं को पार करने के लिए करते हैं। ये प्यारे से जानवर ग्रुप्स की शक्ल में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें हर्ड्स कहते हैं, जो बढ़ते बढ़ते 5 लाख रेनडियर्स तक पहुंच जाते हैं। इनकी जिंदगी की हद एक्सपर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 15 साल है। बच्चों, रेनडियर रोजाना एवरेज 6.5 घंटे नींद करते हैं। इसके अलावा अल्लाह पाक ने इन्हें ऐसी खूबी दी है कि ये खाते वक्त बैठे बैठे या खड़े खड़े भी सो सकते हैं। इस सोने के तरीके को हाइबरनेशन भी कहा जाता है। जज़ाकल्लाहु खैर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसके साथ ही चलते हैं मद्दी मुज़ाकरे की तरफ और देखते हैं कि आज हमारे पास मद्दी मुज़ाकरे के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, मदनी चैनल का सबसे स्पेशल और फेमस प्रोग्राम है मदनी मुज़ाकरा, जिसमें प्यारे प्यारे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत खुद मौजूद होते हैं और प्यारे प्यारे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत से किए हैं मुख्तलिफ सवालात और अमीर अहले सुन्नत देते हैं उनके प्यारे प्यारे जवाबात। मदनी मुज़ाकरे में बहुत सारे लोग फैज़ान मदीना में हाजिर होकर मुर्शिद करीम की ज़ियारत करते हैं और सुनते हैं मदनी मुज़ाकरा, और बहुत सारे लोग मदनी चैनल के जरिए भी मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते हैं और सीखते हैं प्यारी प्यारी दीनी बातें। मदनी मुज़ाकरा हर एक को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें होती है सबके लिए इल्म की बातें, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। और जी हाँ, मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत से सवालात होते हैं, जिनके जवाबात अमीर अहले सुन्नत बहुत ही प्यारे और अच्छे अंदाज में देते हैं। जैसा कि मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल हुआ, इज्तिमा वगैरह में बाद बैठने से क्या मुराद है। अमीर अहले सुन्नत ने बहुत ही प्यारे और अच्छे अंदाज में जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, ऐसे अंदाज में ना बैठें कि अपने या किसी के सुनने में खलल यानी रुकावट आए। बातें करने, इशारे वगैरह करने से बचें। यहाँ हाथ बांध कर बैठना मुराद नहीं है। मौके के मुताबिक ऐसी पोजीशन में बैठने के जिसमें दीन सीखने में ज्यादा आसानी हो। गैर मुहज्जिब अंदाज में, यानी ऐसा अंदाज जिसे लोग ना पसंद करें, उस अंदाज में ना बैठें। आप इस तरह की मजीद प्यारी प्यारी बातें मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करके सुन सकते हैं। और जो बच्चे मदनी मुज़ाकरे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अपनी वीडियोस भेजकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। अब हम देखेंगे शरारत वाला पैकेज, जिसे देखकर आप एंजॉय भी करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो आइए मिलकर देखते हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, कौन है? कौन? बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, यहाँ तो कोई नहीं है। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का कौन है भाई? बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का। अच्छा, तो आप हैं? आपने बाज नहीं आना, अंदर है। अब कौन है? अरे भाई बाहर जाके देखिए ना। खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा। दरवाजा खोले। अब्दुल हादी, कैसा बेवकूफ बनाया। अब्दुल हादी दरवाजा खोले। दरवाजा खोले। अब्दुल हादी दरवाजा खोले। बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बनाया। क्या मसला है अब्दुल हादी, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? बच्चों का खबरनामा। क्या मसला आपके साथ? ये क्या मजाक है अब्दुल हादी? कुछ नहीं बाबा, मैं बताता हूँ। इन्होंने पहले मुझे डोर बेल बजा बजा कर तंग किया और फिर जब मैं बाहर गया तो पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। ये तो बहुत ही बुरी बात है। मालूम है इन्होंने आपकी वजह से कितनी बार आना जाना किया होगा, कितने परेशान हुए होंगे। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। सॉरी भाईजान, आइंदा मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। ओके। माशाल्लाह, आए चले अंदर चले। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खाका था। अब वक्त हुआ है एक और खाके का, जिसका नाम है नन्हे उस्ताद। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा। कितनी जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा। क्या बात है, इतनी जल्दी जल्दी नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? मैं तो ऐसे ही नमाज पढ़ता हूँ। गलती कर रहे हैं ना आप। कैसी गलती? मैं बताता हूँ आपको, आप इधर आइए।
बच्चों का खबरनामा जब आप रुकू करें तो अपनी कमर इस तरह बिल्कुल सीधी रखें बच्चों का खबरनामा खबरनामा और सुकून के साथ करें जिस तरह मैं कर रहा हूँ। इस तरह बच्चों का खबरनामा जी, और सजदा इस तरह करते हैं। खबरनामा खबरनामा बच्चों का खबरनामा और सजदा भी सुकून से करें और जल्दबाजी मत करें। ऐसे बच्चों का खबरनामा खबरनामा जी हाँ। बच्चों का खबरनामा बच्चों एक बात और, सजदे में पेशानी के साथ नाक भी जमीन पर लगाएं और पाँव की उंगलियां किबला रू रखिए। ऐसे बच्चों का खबरनामा बच्चों का खबरनामा बच्चों का खबरनामा खबरनामा ठीक है भाई, जज़ाकल्लाहु खैरा। आइंदा मैं नमाज पढ़ते हुए इन सब चीज़ों का ख्याल रखूंगा कि कोई गलती ना हो। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। और अब सबसे आखिर में वक्त हुआ है हमारे सबसे आखिरी रिपोर्ट का, जिसमें हम आपको एक बहुत अहम शख्सियत के बारे में बताएंगे। तो आइए चल कर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बच्चों का खबरनामा खबरनामा इस्लामी साल के 11वें महीने ज़िकादा शरीफ में भी आरास का सिलसिला होता है। आज मैं आपके सामने एक कमाल की शख्सियत का जिक्र करने वाला हूँ, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनके इल्म से आज भी उलमाए किराम फायदा हासिल कर रहे हैं। मेरी मुराद हजरत इमाम मोहम्मद बिन खुज़ैमा रहमतुल्लाहि अलैह हैं। आप रहमतुल्लाहि अलैह 223 हिजरी में खुरासान के मशहूर शहर निशापुर में पैदा हुए। अल्लाह पाक ने आप रहमतुल्लाहि अलैह को बड़ा ही मजबूत हाफजा अता फरमाया था, इसलिए आपने छोटी सी उम्र में ही कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। आप रहमतुल्लाहि अलैह इबादत गुजार, परहेजगार और सुन्नत के पाबंद थे। आप रहमतुल्लाहि अलैह सादगी पसंद फरमाते थे। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने इल्म दीन हासिल करने के लिए कई शहरों और मुल्कों का सफर फरमाया, जैसे कूफा, बसरा, शाम वगैरह। आप रहमतुल्लाहि अलैह इल्म हदीस में इमाम माने जाते हैं। यूं तो आप रहमतुल्लाहि अलैह ने कई किताबें लिखी, लेकिन हदीस पाक पर लिखी गई किताब सहीह इब्न खुज़ैमा को अल्लाह पाक ने बहुत शोहरत अता फरमाई है। ये किताब हदीस पाक की मोतबर किताबों में से एक है। आप रहमतुल्लाहि अलैह की वफात 311 हिजरी में निशापुर में हुई। अल्लाह पाक की आप रहमतुल्लाहि अलैह पर करोड़ों रहमतें हों और आपके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में मजीद खबरों और ढेर सारी मालूमात के लिए देखते रहिए बच्चों का खबरनामा। और अच्छी तरबियत और दीन इस्लाम की नॉलेज हासिल करने के लिए देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों का खबरनामा बच्चों का खबरनामा बच्चों का खबरनामा खबरनामा बच्चों का खबरनामा बच्चों का खबरनामा बच्चों का खबरनामा खबरनामा बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया